Yes. So today we just look into this data visualization part. In my previous session, I've explained NumPy and I've uploaded the code also. If you go to this link that I share in the Trello, you will find the code for everyone for the every module that we have seen, NumPy, Pandas, okay, and this Matplotlib also you will get that what we have seen means what we're going to see today, and there are some other um, this other code that you can take a references. This is for other courses, but basically for you it will be only this file matplotlib numpy pandas tutorial. And for the data set you can find the data set also. Once you download this folder you will get the data set there itself. Or I will make a one separate folder for you here itself, data science live session, and there I will upload this three file. So you just need to download that folder itself. Okay, so this thing you can do it. And yeah, let's start about it. So see, whenever you wanted to learn about this, why do we go for this data visualization? Because this data visualization will give you the pattern. It will give you idea how datas are usually appear when in the interviews and all. They might ask you question based on this, and in our syllabus also it is there. ML algorithm I will start from the next session, so we will can go deep in that. But before that you should have an idea about how data can be visualized, how pattern, what is the relation between your x variable and y variable. It means that with change in your performance, how this y variable will get changed. So what is the relation between these two column? You can see in the form of graph. So how you usually start? See, you go for this matplotlib, search for the matplotlib. When you go for it, you will see this different kind of graph here, and you can see there are different kind of graphs. And here also you can see line, bar, maker, image, and all different kind of bar you can see it. You can learn from here also by clicking on this example. You can get a several example, you can see that example and do it. Or you can directly do it from here also. You can just click on the one of the exam means graph, as I did here. So once you click on this you will see here like how this graph is occurring, and you will find a code also. So this code, okay, this code you can make it on the Colab. You can download also from here in both Jupyter Notebook format and Python format also. So what this code is doing here, first they are importing a matplotlib numpy library. Why do we need this? So that first one is to import your matplotlib library that will help in making the graph. Second is to read a random data. This is for graph is we are forming based on the random data. Let me show you running this code first, and then we will see one by one. You can easily practice this code by just open the Google Colab. Okay, open the Google Colab and paste the code there. Once you paste the code there, you will able to see whether the graph is forming as it is or what. So yeah, let me click on the new notebook. Once I click on the new notebook, run it again. I will explain each and every code, don't worry. Just wanted to show you how you can practice it. So it will take some time because internally it is working. And let me come down. You see the graph is forming. Let me rerun it. So what actually they are trying to do? See, they are first using this random state, fixing random state for reproducibility. What do you mean by this? It means that they will going to work on random data. Okay, they will going to work on random data. See, it means
they are randomly, they are generating the data, and this value you can pass anything here. Not only this one, you can pass any value here. Okay, let's see here. This is just to pass some value there. It's not like you can pass any value. You just pass any value there, and based on that random data, it will get affected. Okay, it means it is generating a random data over it. Once you are done with this, you can simply write plot rc default, means this function will going to plot your graph based on your random data. Okay, if you are not clear of anything, you can search for the Google also, like what this function they do. I'm talking about the other code also. For this code, I'm telling you that this rc default will be going to create the matplotlib graph. You can search here also, you can find it out, the like a function, you can see the code also for it. Once you click on it, you can see the code here. And if you want to just know what this function they do, just put the cursor here, wait for some time, it will come. You can see. So it is doing restore the rc parameter from matplotlib internal default style. It means that it will going to whatever random data you have generated, based on that it will going to draw the graph, and it will going to restore the parameter. It will going to use the same parameter for drawing the graph. Am I clear to you? एक्चुअली जो फर्स्ट वाले में जो एन पी हम्म, डॉट रैंडम डॉट सीट है जी 196 डाला है या हमने, जी। तो वो 196 का मतलब क्या है, अच्छा, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है उसका डालने हाँ का? तो ये जो है मतलब वो इतने टाइम रैंडम डेटा जनरेट करेगा, उतना ओके, रैंडम डेटा जनरेट करेगा। तो सो यहाँ पे 196 रैंडम डेटा जनरेट हो गया इसमें। जी, यहाँ पे जैसे इधर मैंने ये ले लिया, तो अब इतने रैंडम डेटा जनरेट होंगे, तो ये ग्राफ भी इसके हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, तो ये, ओके, तो वो इतने रैंडम सीड मतलब हो गया, इतने रैंडमली वो डेटा जनरेट करेगा, डॉट सीड फंक्शन। ओके। एंड द सेकंड वन जो पी हम्म एल टी डॉट आर सी डिफॉल्ट है, उसका हम्म जो है वो जो भी हमने डेटा जनरेट करा है उसी हम्म। का वो प्लॉट बना देगा। हाँ वो प्लॉट बनाएगा, बट वो पैरामीटर कौन से यूज करेगा, वो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करेगा। मीन्स यू कैन सी हियर, रिस्टोर द आरसी पैरामीटर फ्रॉम द आरसी फाइल ओरिजिनली लोडेड बाय मैटप्लॉटलिब। तो जो मैटप्लॉटलिब के अंदर कुछ फाइल्स होती है जो कि ग्राफ फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होती है, तो उसके जो पैरामीटर वो यूज करेगा हियर। मीन्स जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है, जो फिक्स पैरामीटर है जो मैटप्लॉटलिब यूज करता है ग्राफ फॉर्म करने के लिए, they will going to use it here. ओके, Okay, because we are not we are just using the default parameter to draw the graph. So this is one example. This is not mandatory to use this line all the time, you can change it and see also. After that, figure ax plot subplot, you are drawing the graph here. So here, once you draw the graph, inside this internally also you have to pass several parameter. You can see subplot is the one function that will create a multiple subplot. So inside this parameter it will create a multiple subplot, but here you can see we have only one graph. So this line you can ignore it, means we are not creating multiple graph, we are just creating a simple graph. But let me show you, if you comment it, what will be impact on that. But you can see here, uh, this figure ax plt dot subplot, this will helpful for creating this whole graph. Why it is so? Because this plt rc dot default will only going to create the graph outer format, outer structure, but internally ये टॉम में कितना बार का साइज होगा, डिक का कितना साइज होगा, हैरी का कितना साइज होगा, ये बार की लेंथ क्या होगी, विड्थ क्या होगी, इसको डिसाइड करने के लिए हमें ये यूज करना होता है plt डॉट सब प्लॉट फंक्शन। तो ये बताएगा। अभी जैसे आरसी डिफॉल्ट हम यूज किया है, तो आरसी डिफॉल्ट क्या बोलेगा कि हाँ इसका एक लाइन ग्राफ बनना चाहिए, बट लाइन ग्राफ बनने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज होगी, ये सब डिसाइड करने के लिए हमें plt डॉट सब प्लॉट को कॉल करना होता है। और plt डॉट सब प्लॉट फंक्शन में, एक मिनट में पैरामीटर दिखा देता हूँ। तो इसमें देखो कितने नंबर ऑफ रोज है, मतलब कितने रोज आप डेटा रीड कर रहे हो, उसमें कितनी कॉलम है,
शेयर एक्स शेयर वाई एक कॉलम होती है जो कि एक्स और वाई का डायमेंशन बताती है. तो राइट, दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ subplot they will going to draw. You can just in a simple word you can understand they are drawing the means they are just helping to draw internally the length of bar, width of bar. तो ये बोल सकते हो, ठीक है. नाउ हियर व्हाट इज योर डेटा. ये तो तुमने बता दिया कि मेरा ग्राफ एक बार प्लॉट होना चाहिए, और उस बार प्लॉट में जो सब प्लॉट मतलब इंटरनली कैसा अपेयर होना चाहिए उसका तुमने वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे, फिगर ए एक्स पी एल टी डॉट सब प्लॉट. अब यहाँ पे तुम डेटा बता रहे हो कि माई वाई एक्सिस विल बी दिस, बिकॉज यहाँ पे तुमने बताया वाई पोजिशन एन पी अरेंज लेंथ ऑफ पीपल, मतलब लेंथ ऑफ पीपल कितना है वाई, ठीक है. तो ये जो वाई वाई पोजीशन है उसमें कितने कितने लोग आ गए, एन पी डॉट अरेंज लेंथ ऑफ पीपल, मतलब 5 डेटा यहाँ पे आ गए. परफॉर्मेंस को तुम कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, 3 into 10, ये एक रैंडम मैंने लिया है, 3 into 10 into np.random.rand 5. तो ये कुछ 5 से मल्टीप्लाई करके उसको परफॉर्मेंस का कॉलम बनाएगा. देन एरर, इफ देर इज एनी एरर जनरेटेड तो ये np डॉट रैंडम डॉट रैंड लेंथ ऑफ पीपल. तो एक एरर जनरेट अगर होता है तो okay, because we have to pass it this error column as a parameter to your one column. You can see here horizontal bar को define करने के लिए तुम्हें ये जो बार एच है ना, बार एच मतलब होता है horizontal graph, h for horizontal, b for means bar for bar graph. तो उसमें तुम्हें क्या क्या पैरामीटर चाहिए, वाई वाई कितनी होगी, विड्थ क्या होगा, ठीक है, हाइट कितनी होगी, और तुम्हें एरर कितना होगा, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है. बट एक मिनट, लेट मी कमेंट इट एंड चेक कि इसमें क्या इम्पैक्ट होता है अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो. ये you means you can't remember this thing, but if anyone give you any task based on that you can draw it. So देखो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, तो ये ग्राफ में कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस वो लाइन नहीं आ रही है जो कि एक पहले लाइन आ रही थी, राइट. अभी जैसे मैं बताता हूँ उसमें, लेट मी कंट्रोल जेड, ठीक है. अब इसको रन करते हैं. देखो ये जो लाइन आ रहा है, ठीक है, ये लाइन किस लिए आ रहा है, ये जो बता रहा है कि इसमें कितना एरर है ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा. तो ये एरर रेट मतलब कि हो सकता है कि ये यहाँ आना चाहिए, बट ये कुछ इधर आ रहा है, राइट. तो इसका कुछ, ये इससे माइनस इसको करोगे तो इतना कुछ एरर है तुम्हारे इसमें, राइट. मतलब यहाँ पे एक्चुअल बार का स्टार्टिंग इधर होना था, ठीक है, बट ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो मतलब इतना कुछ एरर है, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी, यू कैन इग्नोर इट ऑल्सो. I took the example from this matplotlib, that's why they might have added this, but you can ignore this, this is not needed. Then after that, what is you just need to set what is my y position, what will be my y label, y का label क्या होगा, okay. Then ए एक्स डॉट इनवर्ट वाई एक्सिस, बिकॉज जो लेबल है वो तुम्हारे, जो तुम जो लेबल को रीड करोगे वो टॉप टू बॉटम रीड करोगे, तो तुम्हें इनवर्ट वाई एक्सिस दिया है. फिर मेरा एक्स लेबल क्या होगा और टाइटल क्या होगा ये तुम चेंज कर सकते हो, लाइक हाउ फास्ट डू यू वांट टू गो टुडे, सो लेट्स चेंज इट, हाउ फास्टली आई डू इट, राइट. तो ये जो इसको अगर तुम चेंज करोगे तो यहाँ लेबल चेंज हो जाएगा. और ओके, लेट मी कमेंट दिस एंड देन रन दिस. देखो अभी जैसे मैंने plt डॉट शो को कमेंट कर दिया उसके बाद भी रन हो रहा है, तो ये भी एक ऑप्शनल है. plt डॉट शो इज नॉट मैंडेटरी टू यूज इट ऑल द टाइम, यू कैन इग्नोर इट ऑल्सो. बट डिफरेंसेस ये होता है कि अगर इसको कमेंट करते हो तो वो सिर्फ ग्राफ दिखाता है, बट अगर, बट यू कैन सी हियर ये तुम्हें टेक्सचुअल डेटा भी बता रहा है कि कितना मेरा टेक्स्ट, मतलब मेरा टाइटल क्या है उसका वैल्यू क्या है, तो ये तुम, यू कैन इग्नोर दिस. सिमिलरली द थिंग्स दैट यू आर नॉट गेटिंग लाइक ये इनवर्ट वाई एक्सिस, तो इनवर्ट वाई एक्सिस किस लिए यूज हो रहा है कि मीन्स
you just need to read the data from top to bottom. Obviously हम जब ग्राफ को रीड करते हैं तो you have to tell them like I wanted to see the data from top to bottom. So this approach you can follow it. If you want to comment it, आप इसको कमेंट करके भी देख सकते हो कि इज देयर एनी चेंजेस आर अकरिंग ऑन माय फाइल. तो यू कैन सी हियर. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चेंजेस हो गया. मतलब अभी ये मतलब व्हेन आई इन्वर्ट इट, व्हेन आई कमेंटेड दिस वन, इट इज टेकिंग बिग वन एट फर्स्ट, देन बेस्ड ऑन दैट इट इज अरेंजिंग. तो ये चेंजेस होते हैं, राइट? Am I clear to you how this graph is forming, or what is the meaning of each and every line? Am I clear to you? Okay, yeah. Gaurav, हाँ, यस, अभी मतलब एक बार मुझे दोबारा देखना पड़ेगा खुद से, क्योंकि थोड़ा okay. कौन सा समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे? कुछ समझ में तो मतलब आ रहा है, बट चीजें काफी तो वैसी हो रही हैं, ज्यादा हो रही है, तो थोड़ा रिटेन करने में दिक्कत आएगा। Mm-hmm. No, actually, this is a example given in the means like a document. So that's why you are looking complex. But what you need to do it here, see, first तुम code को copy करो, then you just comment all the line and then remove it and based on that try to understand कि actual में क्या बोल रहा है. ठीक है. अभी यहाँ पे तुम people में एक और नाम ऐड कर दो, तो फिर ये जो y पोजीशन है वो कितने वैल्यू के लिए वेरी करेगा? 6 वैल्यू के लिए वेरी करेगा, करेक्ट. और यहाँ पे कितने रैंडम डेटा को वो जनरेट करेगा? 6 रैंडम डेटा को. सो बेस्ड ऑन दैट तुम्हारा ये परफॉर्मेंस आएगा. ठीक है. और ये रैंडम सीड जो होता है, रैंडम सीड मतलब ये होता है कि मतलब रैंडमली डेटा जनरेट होते जाएगा, ये है रैंडम डॉट सीड. सीड फंक्शन है. इसको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, एक मिनट. कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो तुम पढ़ सकते हो उसको कि क्यों यूज हो रहा है. जो अभी ये हम मतलब आपने जो प्रोग्राम है वो, हम्म. तो उसका मतलब यूज क्या है? जैसे हमने रैंडमली जनरेट करा और हमने 5 लेवल लेवल दे दिया है हम्म. कि टॉम, डिक एंड या हैरिस, जिन। करेक्ट. तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंस मुझे समझ नहीं आया, रैंडमली जनरेटेड नंबर्स हम इनको डिवोट क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, रैंडमली जनरेट डेटा रिवोट नहीं कर रहे इसमें. द डेटाज आर योर परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस में डेटा तुम्हारा ये है. ठीक है. बट ये जो रैंडमली सीड ये हो रहा है कि तुम्हारा मतलब ईच डेटा, मतलब जो कोई भी अगर डेटा तुम पिक करते हो उसको तुम कितने टाइम रन कर सकते हो. मतलब ये सीड वैल्यू जो होती है ना, ये जस्ट ये बताती है कि रैंडम वैल्यू तुम पास कर रहे हो और ये ग्राफ को तुम मल्टीपल टाइम रन करोगे तो इतने टाइम रैंडम डेटा जनरेट होगा. तो ये जो वैल्यू है ना, ये हम एक मिनट, अब मैं इसको 1 दे के दिखाता हूँ, रुक जाओ. देखो 1 दिया है मैंने. ठीक है. तो ये ग्राफ इस टाइप का आ रहा है. अब मैं देख थोड़ा थोड़ा चेंज करके तुमको दिखाता हूँ, या तुमको एक एग्जांपल से बताता हूँ. ये जो सीड होती है इसका मतलब बस ये होता है कि रैंडमली डेटा मुझे पिक करना है. एवरी टाइम आई नीड टू पिक द रैंडम डेटा एंड बेस्ड ऑन दैट माय ग्राफिंग मीन्स माय ग्राफ विल वेरी. ओके. बट ये जो परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस तुम कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? ये वाले फंक्शन से, np डॉट रैंडम डॉट रेंड लेंथ ऑफ पीपल. तो जो रैंडम डेटा जो हमारा जो जनरेट हो रहा है, ओके, ये सीड बोलता है. जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ तुमको. एक मिनट मैं देखता हूँ, रुक जाओ. इमेज के फॉर्म में ही बताता हूँ तुमको कैसे होता है. हम्म, नहीं, इसमें यहाँ से ही देख के बता. एक मिनट. देखो, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, np डॉट रैंडम डॉट सीड 0. ठीक है. फिर एक वेरिएबल में मैं रैंडम नंबर हम जनरेट कर रहे हैं. तो जब मैंने यूज़ किया कि np डॉट रैंडम डॉट सीड 0, तो यहाँ पे जो जनरेट नंबर जनरेट हुए हैं,
ठीक है। ये जो रैंडम नंबर जनरेट हुए वो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो हुए हैं। ठीक है। तो सीड बोलने का मतलब ये होता है कि रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, और उस रैंडम नंबर जनरेट होने में कहाँ से तुम स्टार्ट करना चाहते हो। अगर मान लो मैं रैंडम नंबर 0 से 100 के बीच जनरेट करना है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा ग्राफ फॉर्मिंग 50 से हो, मतलब 50 वाले डेटा से पिक करके स्टार्ट हो। मतलब समझ रहे हो कि सपोज रैंडम नंबर इज जनरेटिंग फ्रॉम 0 to 100, but I want that random number should be picked from 50, not from 0 to 100, or not from 0. It should be picked from 50 for forming the graph. So मैं यहाँ पे सीड में वो 50 दूंगा, तो वो 50 को पिक करते हुए हर एक मतलब रैंडम टाइम जनरेट करेगा वैल्यू, मतलब 50 टाइम डेटा को जनरेट करेगा। अभी जैसे यहाँ पे 0 पास किया है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, पहले देखो np डॉट रैंडम परमुटेशन, ये 5 वैल्यू हमने प्रिंट की है, 1 2 3 4। एक मिनट, पहले तो प्रिंट इसका हुआ है, फिर ये 4 इसके प्रिंट हुए, और ये वाला, ठीक है, np डॉट रैंडम रैंड, एक मिनट, प्रिंट या, सो 28 सीट 0 10 प्रिंट किया है, ठीक है, 2849610005। इसमें भी एग्जांपल था, सीट 0, तो ये तो परमुटेशन के हो गए। एक मिनट, एक रुक जाओ, इसमें भी कहीं सीट का वो वैल्यू सिंगल पैरामीटर। देखो यहाँ पे इसका बस ये बता दिया है कि सीड वैल्यू इज नीडेड टू जनरेट रैंडम नंबर, इफ इट इज एन इंटीजर इट इज यूज डायरेक्टली, इफ नॉट इट इज कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, बट इसमें ये नहीं बताया सिग्निफिकेंस। ओके ओके, इसका मैं और एग्जांपल देखता हूँ। ओके एक मिनट, मैं चेक ग्राफ के फॉर्म में ही देख के बताता हूँ, ठीक है। ओके, यू कैन जस्ट थिंक इट एज ऑफ नाउ कि जो रैंडम नंबर है सीड, अगर मेरा ये जो रैंडम नंबर जनरेट करने में हेल्पफुल है, ये तो यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद ये है यहाँ पर कि अगर ये जो रैंडम सीड है तुम्हारा 1 से 100 के बीच डेटा जनरेट करता है, ठीक है, इट इज जनरेटिंग डेटा फ्रॉम 1 to 100, बट you want the number should be generated from 3, then you just pass some value from here so that it will going to generate it। अभी जैसे random seed तुमने दिया, random अगर तुम यूज करोगे तो it can generate any random number, right, but you have to give some value from that you wanted to start। अगर मैं यहाँ पे 51 दे दूंगा, so it will going to take random number from that 51, and it will going to generate random number like this, 51, 52, or like this it will keep on going. So randomly it will going to generate, so seed value you have to pass it at the beginning, from that it will going to generate random number। so वही random seed हम pass किए यहाँ पर, so it will just tell you like how many time that random number will going to generate and what kind of value। now it is clear to you? ओके सो हम्म। जो मेरे को क्लियर हुआ है, जैसे 51 डाला तो हमारा 51 से स्टार्ट होगा और जी 51 टाइम्स ही जनरेट हाँ, होगा। करेक्ट करेक्ट। इसको मैं एक बार कमेंट करके बताता हूँ, देखो अगर इसको मैं कमेंट करता हूँ तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है ये भी चेक करते हैं। ग्राफ हम यूजली इतना कॉम्प्लेक्स ग्राफ हम नहीं बनाते, बट लाइक आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जांपल। अभी जैसे ये देखो, इसमें मैंने जब उसको कमेंट कर दिया तो एवरी बार नाउ गॉट रिड्यूस्ड। तो अभी क्या हो गया कि ये 51 टाइम डेटा को जनरेट नहीं कर रहा है, कि सिर्फ अगर इसको मैंने कमेंट कर दिया, तो अब ये क्या हो गया कि जो मैंने मेरा जो मेन मोटिव था रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब आई वांट द रैंडम डेटा टू बी जनरेट दैट मच टाइम, तो ये अभी इतने टाइम रिड्यूस तो नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, ग्राफ के लेंथ रिड्यूस हो गए, राइट। अभी अब मैं इसको कम करूंगा और मान लो 3 करूंगा तो ग्राफ और चेंज हो जाएंगे।
because it will going to generate only that much random number. You can see it here. तो वो एक इम्पैक्ट होता ही है ग्राफ में, और उसको मैं कमेंट कर दूंगा, तो वो कमेंट करने पे वो रैंडम नंबर इतने जनरेट नहीं करेगा, तो ग्राफ में ऑब्वियसली द लेंथ विल बी गेट चेंज। ओके, लेकिन जैसे जीरो था उस केस में तो फिर भी हम्म। रैंडम नंबर जनरेट हुआ था। कहाँ पे? ये अभी वाला? एक, हाँ आपने एग्जाम्पल दिया ना जीरो। हम्म। नहीं, ये तो परमुटेशन को प्रिंट कर रहा है ना। यहाँ पे प्रिंट देखो, प्रिंट क्या बोल रहा है, प्रिंट परमुटेशन। ठीक है, तो ये दूसरा रैंडम परमुटेशन वैल्यू कर रहा है। मतलब परमुटेशन मीन्स ऑलमोस्ट 10 डिजिट ये जनरेट कर रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे इसको हम प्रिंट नहीं करा रहे, प्रिंट एनपी रैंडम सीड। यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे परमुटेशन को, फिर एनपी डॉट रैंडम परमुटेशन 10। हर जगह 10 है, यहाँ पे 4 है, तो या रैंडम फिर नंबर। यस। सीड का यूज क्या हुआ है यहाँ पे कि बस यही कि जीरो से स्टार्ट हो जो अगला हाँ रैंडम डॉट ट्रेंड जो चालू है हाँ, परमुटेशन वाले में। ओके। करेक्ट। मतलब जीरो से स्टार्ट होगा और एनी नंबर ऑफ रैंडम नंबर जनरेट होगा। मतलब ऐसा नहीं है इसमें जीरो इंटू जीरो। मतलब अगर तुम जीरो स्टार्ट कर रहे हो, जीरो डाल रहे हो, मतलब जीरो से तुम्हारा रैंडम नंबर स्टार्ट होगा, एंड इट कैन बी एनी नंबर। बट अगर मैं उसमें स्पेसिफिकली कोई वैल्यू देता हूँ, देन इट विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नंबर, योर रैंडम नंबर। मीन्स दैट मच टाइम रिप्रोड्यूसिबिलिटी विल कम। अगर मैं जैसे 3 लेता हूँ, तो 3 से तुम्हारा स्टार्ट होगा, और एनी रेंज ऑफ रैंडम नंबर विल जनरेट। तो ये होता है यहाँ पे। तो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं परमुटेशन को, और नंबर ऑफ रैंडम नंबर जनरेटर 4। तो उस हिसाब से प्रिंट, अभी जैसे मैंने यहाँ पे 4 पास किया, तो ये सिर्फ 4 को प्रिंट कर रहा है। देखो, इट इज जस्ट प्रिंटिंग 4 रैंडम नंबर, 0.54, 0.71, 0.60, 0.54, राइट। सिमिलरली एक और 4 को मैंने पास किया, सो इट इज प्रिंटिंग 4। और उसके पहले हमने 0 0 पास किया है, तो फिर उसने 0 0 ले लिया। बट वाई इट इज नॉट टेकिंग इन अदर केस? इसके केस में तो 0 0 ले लिया इसने, कि मैंने सीट को 0 से असाइन किया हूँ, तो इसने रैंडम नंबर 0 के हिसाब से ले लिया है। बट वाई नॉट इन अदर केस? बिकॉज मैंने स्टार्टिंग 0 दिया है, तो वो कोई भी रैंडम नंबर 0 से ले सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बट आई वॉन्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम 0, तो मैंने इसलिए सीड 0 दी है। बट इसमें देखो रैंडम है, तो कोई भी नंबर जनरेट हो सकता है। तो ये देखो, दोनों में डिफरेंसेस है। यू कैन टेक दिस इमेज, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। आई पिंग यू ऑन द चैट। ठीक है, इसमें देखो ये प्रिंट कर रहा है, और इसमें भी सीड को 0 इनिशलाइज किया है, तो इसने फिर 0 से ही इनिशलाइज कर दिया, क्योंकि सिर्फ 4 डिजिट है। यहाँ पे मुझे 10 डिजिट प्रिंट करना है, और वो भी 0 से ही स्टार्ट है, बट इट हैज़ टेकन सम अदर, इट इज नॉट टेक स्टार्टेड फ्रॉम 0। 0 विल बी योर इनिशियल पॉइंट, बट इट कैन टेक एनी नंबर फ्रॉम दैट। तो इसने फिर 2 से स्टार्ट किया है, तो इसलिए ऑल द टू टू टूज आर कमिंग। So it is not mandatory that you just need to pass any seed value there. From there it will going to start, but it's not like it will going to start from that only. It depends on the random function, what kind of value they are generating. Every time it will going to be changed as you rerun this code. Now it is clear. यस। Okay. अगर ये समझ में नहीं आता है तो मैं पिंक करना, मैं और एग्जांपल इसका देख के समझाऊंगा, ठीक है। But make this clear in the mind how it will work, and don't go for such complex. Easy example भी है, but like I was just showing you how you can work with this. Now if you want to work on any graph, okay, let's take a line graph or pie chart. So let's take example of pie chart. So pie chart और easy है। यहाँ पे देखो लेबल्स, व्हाट आर द लेबल्स यू वांट। साइज क्या चाहिए, 15%, 10%, इसको यहाँ पे पास कर दो। एक्सप्लोड, मतलब एक्सप्लोड में ये होता है कि लाइक व्हाट इज अ पार्टीशन यू वांट, ओके। जैसे कि यहाँ पे तुमने 0 0.1 0 0 दिया है, ठीक है। तो जो 0.1 अगर तुम पास करोगे, तो वो एक सेपरेटली तुम्हें दिखाएगा। अभी जैसे यहाँ पे फ्रॉग, हॉक, डॉग, लॉग्स है, ठीक है। अगर तुम किसी को भी 0.1 लोगे, तो वो अलग से तुम्हें ग्राफ में दिखेगा। जैसे ये 0.1
अगर तुमने इसको पास किया, so it is looking separately, right? But what about 0? The value that you have passed 0, so they are connected, right? So this way you can do it. Then you took the variable figure 1 ax1. This is completely user defined. You can take any variable, then you call plt dot subplot. Why subplot? Because internally also you have to do the naming convention, coloring. So subplot is needed. This subplot function, they will going to actually draw the graph. Okay, then to this variable you are telling that I wanted to draw a pie chart, and what are the parameter that you need? Size, explode, labels, and this is optional. You can ignore this. Shadow, true, start angle. Start angle obviously you need to pass, because you know to tell like in which direction it should be passed. Means 90-degree, like if you draw a four quadrant, then with respect to 90-degree, every angle should be, this circle should be draw. Okay, then you just write ax1 dot x is equal. So with respect to the aspect ratio, this pi will draw in form of circle, and you can see it. So it's very easy, it's not difficult. Now what is the use cases? When you will going to work, you will going to work on your whole data set, not like this labels. जब हम लोग work करेंगे, then we will going to work on our complete data set, where your x-axis will be any column, y-axis will be any data. You're not going to pass hardcore value like you are doing here, label, size. We will only going to read a data. We will going to draw the graph based on the column of our data set, and the size will going to be read from the data set only, and then we're going to write this. तो इसको अगर जैसे रन करोगे कॉपी करने बाद, just try to comment every line and run it, so you will understand what is the use of that. तो ये ग्राफ फॉर्म हो गया, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं इसको कमेंट करता हूँ, तो देखते हैं कि क्या चेंज आता है, ठीक है। See any kind of comment. So when you commented it, the only changes are coming that it's not showing your percentage, right? But with the help of this proportion of this pie chart, you can get an idea which one is having more proportion. But if you want to still show the percentage, you just need to add that same. So percentage float के फॉर्मेट में, इसलिए ऐसे शो हो रहा है। अभी इसको फ्री रन करते हैं। ओके, अभी मैंने जीरो डाल दिया, तो देखो परसेंटेज कैसे आ रहा है। इफ आई रिमूव दिस जीरो, इट विल गोइंग टू शो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज डॉट। ठीक है, देखो 15.0, मतलब सिर्फ वन। अगर मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, then it will going to show, still it is showing like this. Let me remove this f, so you can make changes and you can see what variation are coming. See, a proportion is always in a percentage, right? Proportion is not in the integer and all, but it should be in a percentage. That's why it was giving error. And f is for float, so you can decide this also. तो मैंने यहाँ पे 1 दिया, तो अभी प्रॉपरली आ रहा है, राइट? और ये f बताता है फ्लोट वैल्यू के लिए, बिकॉज इट इज कमिंग इन 15.0, 10.0, राइट? ओके, अब मैं इसको शेडो ट्रू को रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या चेंजेस आ रहा है। तो देखो शेडो ट्रू को रिमूव कर दिया तो कोई चेंजेस नहीं है, राइट? सो दैट इन दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड, ओके, इफ आई डोंट कंसिडर दैट पैरामीटर, इज इट फाइन और नॉट? सो दैट वे यू कैन लर्न। सिमिलरली अब मैं स्टार्ट एंगल को देखता हूँ। अगर मैं स्टार्ट एंगल को रिमूव करता हूँ तो क्या चेंजेस होता है, और अगर मैं चेंज करूंगा एंगल तो क्या चेंजेस होंगे, राइट? सो नाउ लेट मी रन दिस। तभी देखो, अभी जैसे ये ग्राफ का पैटर्न ही बदल गया, राइट? क्योंकि मैंने डिफाइन ही नहीं किया कि मुझे 90 डिग्री में क्या चाहिए। अभी अब मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, और इन प्लेस ऑफ दिस 90, लेट मी टेक 180. So see, so this graph will be going to draw in a 180 angle. Means whichever is the uh, more proportion, that will be going to occupy first, then rest one. अभी अगर मैं 90 लूंगा, then sorry,
See, in case of 91, it will take each every angle in the form of 90 and then it draw. Like first, यहाँ से वो draw करना चालू करेगा. So whichever he will get it first, he will draw this, then he will pick the second, then third, and like this it will, the graph will be formed. अभी मैं इसको 360 डिग्री लेके देखता हूँ. So like this. So it depends on the angle how this graph will be, this proportion will be appear. So better to take 90 because it will going to take a straight line and it will going to draw. Now is it clear to you, how to draw the graphs and how you can follow the approach? Is it clear? Okay, yeah. So I have shared you the link. You can practice from here, different graphs. This is just you need it while doing data analysis and nothing more. I just given you an idea. You can practice on the similar code. So to next class, we will see database and machine learning. Yeah, sure, Prashant. I will upload it. Last lecture is already uploaded. Last lecture is already uploaded in that portal. It's Trello only. Please check that. Okay, then yeah. We will connect in the next session. Okay. Yeah, bye.